Hello, I am Wasim and you are watching To Learn Easy YouTube channel. Today we are going to study about polynomial and the topic is geometrical meaning of zeros of linear and quadratic polynomial. So for this now start right now. Now geometrical meaning of zeros of linear polynomial. इसमें क्या होगा the graph of a linear polynomial will be a straight line and the x coordinate of the point where graph cuts the x-axis is the zeros of the linear polynomial. First of all, understand what is the meaning of this. If the graph of a linear polynomial will be a straight line, जो ग्राफ इसमें ड्रॉ किया जाएगा वो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस इट इज द जीरो. जीरो मीन्स सॉल्यूशन. क्या होगा, सॉल्यूशन होगा ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल. फॉर दिस हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल लेट px equal to 2x minus 4 be a linear polynomial. Be a linear polynomial. Now px equal to 0, then क्या हो जाएगा, 2x minus 4 equal to 0. This imply 2x equal to 4. Now x equal to 4 by 2 means 2 से 4 कट जाएगा, 2 बचेगा, तो x equal to 2. मतलब क्या हुआ कि ये जो x equal to 2 जो है ना वो इसका सॉल्यूशन है, मीन्स इसका सॉल्यूशन है, लीनियर पॉलिनोमियल का ये सॉल्यूशन है. अब इसको हम लोग चेक करेंगे ग्राफ पे कि क्या ये सही है या नहीं. ओके, नाउ ड्रॉ द ग्राफ of y equal to px, that is y equal to 2x minus 4. Let equation first. Now we take suitable value of x and calculate the corresponding value
corresponding value of y. For this we draw the box like this. Now put x and y equal to 2x minus 4. Again taking x equal to 0, then y equal to 2 into 0 minus 4 equal to minus 4. Now we put here x equal to 0 and y equal to minus 4. Taking again x equal to 1, then y equal to 2 into 1 minus 4 equal to 2 1 2 minus 4 equal to minus 2. It means x equal to 1 and y equal to minus 2. Now student, look at the graph here. 0 equal to 0 and minus 4, here 0 and minus 4, x axis में 0 और y axis में minus 4. So there is the point. And second one is 1 and minus 2. Look here, 1 and minus 2. X axis is 1 and y axis is minus 2. So this is the point. When we draw the line that passes through the point 2. Look here, when we draw the line, it is passes from the point 2 on x axis. Now look here, the graph of y equal to 2x minus 4 gives the straight line. Okay, a straight line which joining the point zero, minus 4 and 1 and minus 2. जब इस लाइन को ड्रॉ किया गया, मीन्स इन ये जो पॉइंट आया हम लोगों का x 0 एंड y इक्वल टू माइनस 4, x इक्वल टू 1 एंड माइनस 2, जब इस पॉइंट से इस कोऑर्डिनेट से जब लाइन ड्रॉ किया गया तो क्या होता है कि ये x एक्सिस को 2 पे कट करता है. मीन्स कि द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 2x माइनस 4 गिव द स्ट्रेट लाइन. और क्या करता है कि ये जो स्ट्रेट लाइन पास करता है विच ज्वाइन द पॉइंट 0 माइनस 4 एंड 1 minus 2 by drawing the line cut x axis at 2, that is 0 2. ये क्या है? which is the zero of linear polynomial, which is the zero means what? Zero means solution of linear polynomial क्या होगा? px इक्वल टू 2x माइनस 4. तो ये हुआ ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल. कि लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होता है कि जब ग्राफ ड्रॉ किया जाता है तो क्या होगा कि द ग्राफ ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल विल बी स्ट्रेट लाइन. ऑलवेज रिमेंबर दिस इज द मेन पॉइंट विच इज टू बी रिमेंबर इन दिस टॉपिक. What is
the graph of a linear polynomial will be a straight line and the x coordinate of the point where graph cut the x axis is the zero or solution of the linear polynomial. Now we are going to study next point, which is geometrical meaning of zeros of quadratic polynomial. So look here. Now second point is geometrical meaning of zeros of a quadratic polynomial. अभी जो पिछले में पढ़े हम लोग, पहले जो पढ़े हैं वो था लीनियर पॉलिनोमियल, और अब जो पढ़ने जा रहे हैं वो ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसमें इसको सॉल्व करते हैं, समझते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है। कंसीडर द क्वाड्रेटिक polynomial px equal to x square minus 4x plus 3 in order to draw the graph y equal to x square minus 4x plus 3, we take suitable value of x and calculate the corresponding value of y। स्टूडेंट, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ करते हैं हम लोग, एक बॉक्स ड्रॉ करते हैं। बॉक्स ड्रॉ करने के बाद हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे, और सॉल्यूशन निकालने के बाद फिर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो लुक स्टेप बाय स्टेप एंड अंडरस्टैंड। एक्स वाई इक्वल टू क्या है हम लोग का, एक्स स्क्वायर माइनस 4x एंड प्लस 3। छोटा हो गया बॉक्स, बट समझने की कोशिश कीजिए। नाउ लेट x इक्वल टू -1 से स्टार्ट करते हैं। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। तो क्या हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर, क्योंकि x का वैल्यू हम लोग पुट कर रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर -4 इंटू -1, 4x है, और प्लस 3। तो क्या हो जाएगा 1 + 4 + 3 इक्वल टू 8। 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर तो पॉजिटिव वैल्यू देगा, और -4 इंटू -1 इक्वल टू 4, और ये 3। तो क्या हो जाता है 1 + 4 5 और 3 8। जब हम x का वैल्यू -1 रखते हैं तो y का वैल्यू 8 हम लोगों को मिला। फिर क्या करते हैं कि टेकिंग x इक्वल टू 0, x को 0 लेते हैं। उसके बाद क्या होता है वो देखते हैं। देन y इक्वल टू 0 का स्क्वायर -4 इंटू 0 एंड प्लस 3 बिकॉज ऑफ x इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, क्या होगा, सिर्फ 3 होगा। तो पुट हेयर x इक्वल टू 0, देन y इक्वल टू 3। अगेन टेकिंग x इक्वल टू 1। जब x इक्वल टू 1 लेंगे तो क्या होगा, y इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट पुट करते हैं क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा। तो y इक्वल टू 1 का स्क्वायर -4 इंटू 1 और प्लस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ 1
-4 और +3, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू 3 और 1 4 और -4 इक्वल टू 0 हो गया। तो जब हम 1 लिए x का वैल्यू तो y इक्वल टू हमारा 0 हो गया। इसी तरह से अब फिर से लेते हैं, टेकिंग x इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर -4 इंटू 2 और +3 बराबर में क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, डायरेक्ट करते हैं, 4 और 3 7, और ये 4 दूना 8, तो 8 अपोजिट साइन है, तो 8 में से 7 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, -1, तो ये -1 हो जाएगा। तो यहाँ क्या राइट करेंगे हम लोग कि x का वैल्यू 2 लिए तो y हमारा 0 हो गया। फिर अब हम लोग x के वैल्यू हम लोग 3 लेंगे, तो टेकिंग x इक्वल टू 3, देन y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 3 का स्क्वायर -4 इंटू 3 +3, डायरेक्ट करते हैं, 3 3 जा 9 और 3 12, और 4 3 जा 12, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ कंप्लीट 0 हो गया, तो यहाँ y का वैल्यू 0 हो जाएगा। फिर आगे हम लोग लेते हैं, टेकिंग x इक्वल टू 4, देन y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर -4 इंटू 4 और +3, तो 4 4 जा 16 और -4 4 जा 16 0 और +3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिर्फ 3। तो जब हम लोगों ने x का वैल्यू 4 लिया है तो क्या हो गया, यहाँ हमारा हो गया 3, ओहो यहाँ मिस्टेक हो गया, यहाँ -1 है, टेकिंग 2 देन -1, सॉरी दिस वन इज -1। फिर से आगे लेते हैं, टेकिंग x इक्वल टू 5, देन y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर -4 इंटू 5 और +3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू हमारा 5 5 जा 25 एंड 4 5 जा 20, यहाँ 5 बचा घटाने से और +3, तो y इक्वल टू 8 हो गया। तो जब हम x इक्वल टू 5 लिए तो y इक्वल टू 8 हो गया। अब हम लोग ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, तो ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखिए ये ग्राफ ड्रॉ करके यहाँ सेट किए हैं। अब इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, यहाँ सबसे पहले इसको देखिए, x का वैल्यू -1 और y का वैल्यू 8, तो x -1 और 8 दिस वन। फिर सेकेंड वन इज b नंबर में x 0 और y 3, तो हेयर x 0 एंड y 3। थर्ड नंबर में x 1 और y 0, तो यहाँ x 1 है और y 0 है। फोर्थ नंबर में मिस्टर डी नंबर में x 2 और y -1, तो x 2 और y -1 है। यहाँ देखें ग्राफ पेपर पे देखें, एंड जब x इक्वल टू 3 लिया गया तो y इक्वल टू 0, आप यहाँ देखें, ठीक है। फिर है कि x इक्वल टू 4 लिया गया तो y इक्वल टू 3 आया, और फिर x इक्वल टू 5 लिया गया तो y इक्वल टू 8 आया। अब आपको समझना है और देखना है कि x एक्सिस को ये ग्राफ कहाँ कट कर रहा है, कहाँ पे कट कर रहा है। तो ध्यान से देखने से पता चलता है कि x एक्सिस को ग्राफ देखिए यहाँ पे कट कर रहा है। ये क्या है, पॉइंट 1 एंड 0, एंड सेकेंड वन क्या है, 3 एंड 0, मीन्स का इसका 2 सॉल्यूशन हुआ, इसका 2 सॉल्यूशन होगा। मीन्स कि ये तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 2 सॉल्यूशन निकला। अब थोड़ा सा इसमें लैंग्वेज राइट करते हैं कि द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू x² -4x + 3
cuts x axis at 0 1 coordinate 0 1 and coordinate 3 and 0। एक जगह 0 1 पे कट करता है, सॉरी 1 0 पे कट करता है, 1 एंड 0 पे कट करता है, 1 एंड 0 और सेकेंड वन 3 एंड 0 पे ये कट करता है। यहाँ तक तो समझ में आ गया। आगे देखते हैं फिर क्या है कि द एक्स कोऑर्डिनेट of the point where the graph cuts x axis are 1 and 3। कहाँ कहाँ पे कट करता है x एक्सिस को? 1 पे और 3 पे। एंड these are the zeros and solution of polynomial px equal to x square minus 4x plus 3 because p1 equal to 0 and p3 equal to 0। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। नाउ thus the zeros of a quadratic polynomial are x coordinate of the point where the graph cuts x axis। तो ये कंप्लीट हुआ। आप इसको दोबारा देखेंगे, दोबारा देख कर खुद समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये क्या था कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो स्टूडेंट आप देखें और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको आप सॉल्व करें। एट लास्ट, अभी तक जो स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।